Hello students of class 3rd, how are you all? Hope you will be fine. So children, today we are going to discuss the exercises of unit 5, that is the sentence. Okay, this is the part 2. In the part 1 I have explained this chapter. I have uh, given you introduction of this chapter. I have explained everything about the chapter. Okay, today in this video we will discuss only the exercises. So let's move to the exercises. Come to the question number 1. See the question number 1 of page number 21 of your English grammar book. Look at this group of words and tick those which are sentences. See children, what you have to do here, you have to tick those sentences which are giving meaningful sense. Okay, you have to tick only there which is a sentence. Sentence means what? A group of words which are giving meaningful sense. Okay, then see the first one. India is this a sentence? No, there are group of words, but it is not giving meaning. Okay, and you can see here there is no punctuation mark, neither full stop, nothing is there. So this is not a sentence, so you will not tick here. Okay, in the question number 2, India is my motherland, and then full stop. Yes, there are group of words and they are giving meaning also. So, and one more thing, that there is punctuation mark also, so it is a sentence. Okay, so you will tick here in the question number 2. Okay, in the third one, the new car. What the new car, is it giving you meaning? No, this is incomplete, so it is not a sentence, so you will just leave it. In the fourth one, Sam doesn't like chess. Sam doesn't like this, then full stop. Yes, it is giving meaning. Okay, so again this is a sentence because it is following everything, all the rules it is following. It means there is punctuation mark also, there is a group of words also, they are giving meaning also. So this is a sentence, so you will tick it. In the fifth one, Jia is wearing a, what she is wearing, we don't have any ideas now, so this is a incomplete sentence, so this is not a sentence, so you will just leave it. Come to the sixth, Samarth won the quiz, then full stop. Yes, there are a group of words, they are giving meaning also, and they are followed by punctuation mark also, so this is a sentence, so you will tick here. Seventh, what is, and then after there is no punctuation mark, nothing is there, it is meaningless, so it will be not a sentence. Then in the 8, where is your uncle's showroom, and then question mark. Yes, it is a question. Here it is a sentence and it is asking some question, so it is an interrogative sentence, so again this is a sentence, so you will tick it here. Okay, question number 9, look at what, we don't have anything that what this sentence is going to say, so this is an incomplete sentence, you can say. It is not giving any meaning, so it will be not sentence, so you will leave it. And then in the 10, look at the smart board. Yes, here the sentence has been completed, it is giving meaning also, it has been followed by punctuation mark also, so it will be a sentence, so you will tick here. Okay, now question number 1 we have done. Come to the question number 2. In question number 2, match the columns to form sentences. See children, in the first column half portion is given, and the second column half portion is given. Okay, you have to match them to make a meaningful sentence. Fine. So in the first one, I am, then I am, it will be matched with what? A, I am pluck flowers? No. I am you need? No. It is again meaningless, there is no meaning. Then I am your class monitor, then question mark it is there. So if it will have been am I, then it can be matched with the C, but here it is an I am, so it will be not matched with C also. I am of the lights? No, it can't. I am are loving and caring? No, there will be two verbs, helping verbs, I am and are, so it cannot be. In the fifth, you can match I am washing my hands. Yes, you can you can match it, because here it is giving proper meaning, so first one will be matched with F. Then in the first you will write F. Okay, wait for a second. Yes, in the first one it will be F.
ठीक है, this one. And in the question number 2, please switch what? It will be switch off the lights ना. Then in question number 2 will be matched with D. Then 2 के सामने आप लिखोगे D. Fine. Question number 3, what do what? अब देखो किससे ये मैच हो सकता है जिससे वो मीनिंग दे सके, एक प्रॉपर मीनिंग दे सके. देन इट विल बी मैच्ड विथ बी. व्हाट डू यू नीड? तुम क्या चाहते हो, तुम्हें क्या ज़रूरत है. देन थर्ड विल बी मैच्ड विथ बी, सो यू विल राइट हियर बी. इन द क्वेश्चन नंबर 4, our teachers what? Then pluck flowers, no. You need, no. It can be E. Sorry. Our teachers are loving and caring. Yeah, it is giving meaningful sentence. So fourth will be matched with E. Okay. Fifth one, don't. इसके बाद क्या हो सकता है? There might be some suggestion that don't pluck flowers. Yes, it can be matched with A. So fifth will be matched with A. फिफ्थ को आप A से मैच करोगे. सिक्स्थ, who is blank. Then who is C, can only C is remaining, so you can match sixth with C. Who is your class monitor. Okay. Again this is an interrogative sentence. This is a question. 6, here you will write C. आप यहाँ C लिख दोगे. Done. Now move to the question number 3. This chapter is so easy, you can do it very easily. Okay. Now move to the question number 3. Rearrange the words to make statements. Start with the underlined words. See children, in question number 3, words are given but they are not arranged. Okay, group of words are given but they are not arranged. But what you have to do here, you have to rearrange them. Okay, you have to rearrange them so that it can give meaningful sentence. Okay, it can be meaningful sentence, it can be give some meaning. Okay, so in the first one, one more thing, that the words which are underlined will be at the beginning of the sentence. Okay, so you have to start the sentence with that word which are underlined here. In question number 1, you can see that it is underlined, so it will come at the beginning of the sentence. So here it will be I. Then आप अरेंज करो क्या हो सकता है. I के बाद क्या होगा, एक हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए. सो I के बाद am हो जाएगा. एंड देन जो लास्ट में बचा आप लोग उसे लिख दोगे, दैट विल बी पंक्चुअल. तो हो जाएगा ये I am punctual. एंड देन वन मोर थिंग, डोंट फॉरगेट टू गिव पंक्चुएशन मार्क. ओके, अगर वहाँ पर ज़रूरत है फुल स्टॉप की, देन यू विल गिव फुल स्टॉप. अगर आपको क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत है तो आप दोगे क्वेश्चन मार्क. ओके, अगर आप नहीं देते हो देन आप फिर वो रूल फॉलो नहीं कर पा रहे हो सेंटेंस का. ठीक है, तो मैं फर्स्ट वाला देखो मैं आप लिख दे रही हूँ. ओके, दिस इज A. देन इट विल बी I am punctual. नाउ इट इज़ अ proper sentence. Okay, in question number 2, Chase plays Sneha. Then which one is underlined here? Then the word Sneha is underlined here na, so it will come first. So you will write here, so it will start with the word Sneha. ये स्नेहा वर्ड से स्टार्ट होगा सेंटेंस. आप लिखोगे जो भी अंडरलाइन किया हुआ वर्ड आप उसे पहले लिखोगे सेंटेंस में. आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ लैंग्वेजेस, इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश ऑल्सो. ओके, सो दैट इट कैन बी ईजी फॉर यू. मैं दोनों लैंग्वेज में समझा रही हूँ आपको, हिंदी और इंग्लिश में, ताकि ये आपके लिए ईजी हो जाए. तो आप स्नेहा पहले लिख दोगे एंड देन उसके बाद ये तो सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद क्या आना चाहिए, वी शुड हैव वर्ब. आफ्टर सब्जेक्ट वी शुड राइट वर्ब. और कौन सा यहाँ वर्ब है, आप देखो प्लेज है ना, तो आप लिखोगे स्नेहा के बाद प्लेज. तो स्नेहा प्लेज, और जो बच गया वो लिख दो कि स्नेहा प्लेज चेस. ओके, एंड देन डोंट फॉरगेट टू गिव फुल स्टॉप. लास्ट में फुल स्टॉप दे दोगे. ओके, थर्ड में कैलकुलेट कैन कंप्यूटर्स फास्ट वेरी. ऐसा तो ये बिल्कुल अरेंज नहीं है, तो आपको अरेंज करनी है. तो विच वन इज अंडरलाइंड हियर, यहाँ कौन सा अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ द वर्ड कंप्यूटर्स. तो आप कंप्यूटर्स को पहले लिख दोगे कंप्यूटर्स, एंड देन आप यहाँ लाओगे हेल्पिंग वर्ब कंप्यूटर्स कैन. तो कंप्यूटर क्या कर सकता है, अब आपको सोचना होगा. तो ये करता है क्या फास्ट वेरी. तो क्या फास्ट वेरी करता है, कैलकुलेट करता है ना. तो आप पहले लिखोगे कंप्यूटर्स, देन उसके बाद कैन, देन कैलकुलेट. उसके बाद देखो फास्ट और वेरी में से कौन आएगा, क्या फास्ट वेरी सही है, वेरी फास्ट. देन वेरी फास्ट ना, तो आप लिखोगे कंप्यूटर्स कैन कैलकुलेट वेरी फास्ट.
then full stop. Got it? So in this way you will do the rest of the questions. Okay, now come to the question number 4th. Question number 4. See, change the position of the helping verbs to make questions. Don't forget to start with a capital letter and ends with a question mark. So children, आपको यहाँ क्या करना है, यहाँ आपको जो हेल्पिंग वर्ब्स है उसे उसका जो पोजीशन है वो चेंज करना है. क्यों? बिकॉज यू हैव टू मेक ए क्वेश्चन. क्वेश्चन मीन्स यू हैव टू मेक एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस. ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब्स को आगे लाना है ताकि वो क्वेश्चन बन जाए. और वन मोर थिंग, ऐसे भी हमें पता है कि कोई भी सेंटेंस जो स्टार्ट होता है वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, तो इसलिए यहाँ आपको बोल दिया गया है डोंट फॉरगेट टू स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर. तो आपको हर चीज़ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना होगा, वो बीच में लिखा हो या ना हो कैपिटल में. जैसे कि फर्स्ट आप देख सकते हो, सम्राट वॉज क्राइंग लाउडली, तो इसका हेल्पिंग वर्ब्स कौन है? दैट इज़ वॉज. ओके, इज़, एम, आर, वॉज, वर, ये सारे क्या होते हैं? ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. ठीक है, तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब है? दैट इज़ वॉज. तो यहाँ लिख रखा है ना कि हेल्पिंग वर्ब्स को आपको स्टार्टिंग में लिखना है, मतलब कि पोजीशन चेंज करना है क्योंकि आपको क्वेश्चन बनाना है. तो हमें जब क्वेश्चन बनाना होता है देन वी राइट द हेल्पिंग वर्ब्स एट द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस. हम हेल्पिंग वर्ब्स को स्टार्टिंग में लिखते हैं सेंटेंस के. तो फर्स्ट में हमारा हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो वॉज हमारा पहले आ जाएगा. ओके, और वन मोर थिंग कि हमारा जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए. तो आप वॉज देखो यहाँ स्मॉल लेटर में है, तो आप यहाँ क्या करोगे, वॉज का जो डब्ल्यू है वो आप कैपिटल कर दोगे. ठीक है, जब आप इसे लिखना शुरू करोगे, आप खुद से बनाना शुरू करोगे, ब्लैंक में लिखना फिल करना शुरू करोगे, तो वहाँ आप कैपिटल कर दोगे. देखो यहाँ वॉज, उसके बाद क्या है, वॉज सम्राट क्राइंग लॉर्डली. उसके बाद वॉज के बाद आप सब्जेक्ट लाओगे, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है, सम्राट. ओके, तो सम्राट लिख दोगे. और उसके बाद आपको लाना वर्ब, तो यहाँ वर्ब है क्राइंग. और उसके बाद आपको जो भी यहाँ लाउडली जो एडवर्ब है, मतलब कि जो भी बच गया है आप वहाँ लिख दोगे. अब ये एडवर्ब क्या है वो आपको आगे पढ़ना है. ठीक है, आप जानते नहीं हो क्या होता है एडवर्ब, तो बस ये समझ लो, फिर जो आपको बच जाता है वो आप लिख दोगे. ओके, एंड देन आपको क्वेश्चन बनाना था यहाँ, तो आप क्या करोगे, यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. इट इज़ रेनिंग हैवीली. तो अब आप उसको इसमें देखो विच वन इज़ द हेल्पिंग वर्ब हेयर. हाँ, वन मोर थिंग, जितने हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ अंडरलाइन किए गए ताकि आपको ईजी हो समझ सकने में. ठीक है, तो आप देखो, अगर आप नहीं पकड़ पा रहे कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, तो आप देख लो कौन सा वर्ड अंडरलाइन किया हुआ, वो आपको स्टार्टिंग में लाना है. तो इन क्वेश्चन नंबर 2 विच वन इज़ हेल्पिंग वर्ब? दैट इज़ इज़. एज यू कैन सी इट इज़ अंडरलाइंड ऑल्सो, तो आप इज़ को पहले लाओगे. ओके, और इज़ का जो फर्स्ट लेटर है दैट इज़ आई, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कैपिटल, एंड इट विल बी लाइक दिस इज़. थोड़ा गंदा लिखा रहा है मैं लिख नहीं पा रही हूँ इसमें. ठीक है, देन इज़, उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट क्या है दैट इज़ इट, तो आप इज़ के बाद क्या लाओगे, इज़ इट. और ये इसका जो है ना ये स्मॉल हो जाएगा. फर्स्ट में आप बोलोगे मैम फर्स्ट में सम्राट का इस क्यों नहीं स्मॉल हुआ? क्योंकि जो नेम है आपको पता है ना, प्रॉपर नाउन में आपने पढ़ा था कि उसका जो प्रॉपर नाउन जो हमेशा वो होता है वो स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से. दैट्स वाई वी हैव रिटन द लेटर एस विथ कैपिटल. ओके, तो आप इज़ के बाद इट लिखोगे एंड देन फिर आप फिर से यहाँ लाओगे वर्ब, तो ये हो जाएगा रेनिंग. ओके, इट इज़ इट raining heavily. Okay, then you will don't forget to give question mark because you are making an interrogative sentence, you are making a question. क्वेश्चन जब भी हम बनाते हैं तो उसके आगे हम क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं. सो डोंट फॉरगेट इट. गॉट इट? वी हैव डन क्वेश्चन नंबर 2. थर्ड में देखो, ही कैन प्ले कैशियो. अब देख सकते हो विच वन इज अंडरलाइंड हियर, द वर्ड कैन, दैट इज योर हेल्पिंग वर्ब. So again can will come first, so he and it will, and the C will be in capital. Okay, so can, and then what is the subject here, he. Who is playing here? Subject means what, जो काम हो रहा है वो कौन कर रहा है यहाँ. जैसे कि फर्स्ट वाले में सम्राट वॉज क्राइंग लॉर्डली, कौन चिल्ला रहा है, सम्राट है ना, तो सम्राट विल बी सब्जेक्ट. क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ रेनिंग हैवीली, तो बारिश, क्या बारिश हो रही है, यह इट इज़ रेनिंग, तो इट जो होगी वो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट. थर्ड में ही कैन प्ले कैशियो, कौन प्ले कैशियो खेल सकता है, तो ही, वह, तो आप यहाँ फिर ही को, ही इज़ योर सब्जेक्ट, तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लाओगे, सब्जेक्ट. ओके, सब्जेक्ट मीन्स डूअर, जो कोई काम करने वाला, जो भी सेंटेंस में जो काम करने वाला, जो एक्शन कर रहा है वो दैट विल बी योर सब्जेक्ट. ठीक है, आप शॉर्ट में ही समझ लो.
then you will write here can he, this is he, wait, yeah, this is e, can he, and then what is the verb here, that is play. तो फिर आप यहाँ लिख दोगे verb ला दोगे, उसके बाद जो बचा कुछ है वो verb डाल दो. कैन ही प्ले कैशियो, कैशियो का सी कैपिटल है क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, इट इज़ द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर गेम, दैट्स वाई. ओके, एंड देन यू विल पुट क्वेश्चन मार्क. ओके, डन. इन दिस वे यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन. फाइन. ऐसा लग रहा है किसी बच्चे ने लिखा है, मैंने लिखा ही नहीं है क्योंकि मैं फिंगर से लिख रही हूँ, बिल्कुल स्लिप कर रहा है. ओके, सो जस्ट don't give any attention towards it. Okay, in this way you will do rest of the questions. Got it? And still if you are having any problem, then you can ask me personally also. Fine. And I will explain this exercise in Zoom class also, so don't worry. Now come to the question number 3rd. Question number, sorry, we were in question number 4. Now we will come to the question number 5th. Rearrange the words to make questions start with an underlined word and end with a question mark. See, in question number 5th we have to arrange the words. Okay, these words are not arranged. In the question number 4th it was arranged, but in this question words are not arranged. Okay, you have to arrange them first. ठीक है. और one more thing is that you have to underline the word. You have to start the sentence with those words which are underlined here. जो वर्ड्स यहाँ अंडरलाइन किए गए उससे आपको सेंटेंस को स्टार्ट करनी है, एंड देन बाकी को फिर आपको अरेंज करनी है. ठीक है. तो यहाँ देखो आप क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज द वर्ड वॉट. तो आप वॉट लिखोगे पहले, है ना. तो यहाँ आप लिख दोगे वॉट. ओके, एंड देन वॉट के बाद क्या आ जाएगा, आर डूइंग वॉट यू. इज इट ए सेंटेंस? नो, इट इज़ नॉट गिविंग मीनिंग, इट इज़ नॉट अरेंज्ड ऑल्सो. तो ये आपका सेंटेंस नहीं था, इससे आप सेंटेंस बना रहे हो. ओके, और यहाँ क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप क्या करोगे, वॉट के बाद क्या होना चाहिए, आर. ओके, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, तो आप लिखोगे वॉट आर यू डूइंग. ओके, देन अगेन यू विल पुट यहाँ सब्जेक्ट, यू विल पुट हियर वॉट आर यू डूइंग. ओके, एंड देन यू हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. तो आर डूइंग वॉट यू कैसे बन जाएगा ये, इट विल बी वॉट आर यू डूइंग. नाउ इट इज़ अ प्रॉपर सेंटेंस ना, नाउ इट इज गिविंग सम मीनिंग ऑल्सो. क्वेश्चन नंबर 2, यू वेयर लिव डू. इज इट अ सेंटेंस? नो, इट इज़ नॉट अरेंज्ड. अगेन यू हैव टू अरेंज देम. पहले क्या करोगे आप, जो अंडरलाइन वर्ड है उससे आप स्टार्टिंग में लिखोगे, इट मीन्स वेयर जो है वो आपका पहले आ जाएगा. ठीक है. देन इट विल बी वेयर डू यू लिव, है ना. क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है कहाँ रहते हो आप, तो क्या पूछा जाता है, यू वेयर लिव डू, या फिर वेयर डू यू लिव, ऐसे पूछा जाता है. वेयर डू यू लिव ना, देन क्वेश्चन मार्क. ओके, इस तरह सब कर लोगे. क्वेश्चन नंबर 3, आई इन कम में. आप जो क्लास में इंटर करते हो आप पूछते हो मे आई कम इन मैम, बोलते हो मे आई कम इन सो. तो वही चीज़ आपको करना है. तो पहले क्या बोलते हो, मे. तो मे ऐसे भी अंडरलाइन किया, आपको ऐसे भी हिंट्स दे दिए गए, तो आप मे को पहले लिख दोगे. ओके, एंड देन सब्जेक्ट क्या है, द वर्ड आई. सो आप यहाँ लिखोगे मे आई, एंड देन आप यहाँ लगोगे वर्ब मे आई कम इन. ठीक है, आपको अंदर आना है तो इन, तो देन क्वेश्चन मार्क. ओके, मे आई कम इन. ओके, इन दिस वे यू विल डू रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस. गॉट इट. नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6. Oh sorry, there is no question number 6, there is fun time. So match the heads with tails to make sentences. Again you have to match here, just like question number 2. Okay, you have to make you have to match them so that it can give a meaningful sentence. Suppose you can see first one, snakes are capital of Rajasthan. No, ये हो सकता नहीं. Snakes are reptiles. Yes, it can be. So first will be matched with here. तो आप ये करोगे स्नेक्स आर रेप्टाइल्स. इज़ एन ऑस्ट्रिच व्हाट, किसे मैच कर सकते हो आप, वेट मुझे इसे थोड़ा शॉर्ट करने दो. इज़ एन, सारे आ जाए, नहीं आ पा रहे, और छोटा कर लेती हूँ. यस, नो इट इज़ ओके. तो वेट फर्स्ट वाली कहाँ चले गए. देन
स्नेक्स आर रिप्टाइल्स, आप तो फर्स्ट वाला कर लिए इसमें मैच, है ना, फर्स्ट वाला ये। इज़ एन ऑस्ट्रिच व्हाट, इज़ एन ऑस्ट्रिच द लार्जेस्ट बर्ड, ये मैच हो सकता है आपका। ओके, 2 को आप यहाँ मैच कर दोगे। जयपुर इज़ द जयपुर इज़ व्हाट, दिस इज़ द कैपिटल ऑफ राजस्थान ना, तो आप थर्ड को क्या मैच करोगे, जयपुर द कैपिटल ऑफ राजस्थान। ओके, बच्चे थोड़ा मुश्किल हो रहा है क्योंकि ये स्क्रीन मैं ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये आगे पीछे हो जा रहा है। मैं जो बोल रही हूँ जिस वक्त कर रही हूँ आप उस वक्त मैच करना। ओके, डज द प्यून व्हाट, उसके बाद देखो डज द प्यून, वो क्या करता है, प्यून क्या करता है, रिंग, बेल रिंग करता है ना। देन फोर्थ विल मैच विथ हियर लास्ट वन, डज द प्यून रिंग द बेल। ओके, यहाँ तो ऑप्शन दिए नहीं है कि मैं वहाँ नंबरिंग कर दूँ, मुझे यहाँ मैच करना ही पड़ेगा। ओके, फिफ्थ वन मे आई, तो मे आई गो, तो आप यहाँ क्या आ जा सकते हो, क्या लार्जेस्ट बर्ड, नहीं, प्लेइंग लूडो नो, वॉशरूम, मे आई गो टू वॉशरूम, सो इट विल बी मैच विद दिस वर्ड्स। सिक्स वन स्नेहा एंड पारस आर, ये 2 बच्चे क्या कर रहे हैं, ये दे मस्ट बी प्लेइंग, क्योंकि और भी ऑप्शन तो है नहीं इसमें सेकंड वाले कॉलम में, तो आप 6 का यहाँ मैच कर सकते हो, स्नेहा एंड पारस आर प्लेइंग लूडो। सो दैट्स ऑल। Okay, I hope you would understood this topic, you would understood the exercises also. So that's all for today. Have a good day. Thank you. Bye bye.